Welcome friends in today's session of Business Regulatory Framework subject. Currently we are dealing with Unit 4, Intellectual Property Rights. Basically there are three types of important intellectual property which we are dealing with as per our syllabus. We have covered two important intellectual properties in the previous session. We have understood the overall concept of trademark and patent. Today in this session we will try to cover the third important type of intellectual property, that is copyright. So let us see what pattern of question would be asked to you from this particular section. What do you mean by copyright? We will try to understand what is exactly copyright and what are the works protected under copyright. Introduction. Now friends, as per the types of intellectual property, there are various types of intellectual property. We have covered trademark as per Trademark Act. We have covered patent as per Patent Act. Today we are going to cover copyright as per Copyright Act. तो हर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का खुद का एक्ट है, बेसिकली इन तीन का तो है ही। तो उनका खुद का एक्ट है, यानी कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। So what exactly is copyright? We will try to cover in this session. Only human beings are capable of creativity, and only human beings are also capable of creating the threat of copying, stealing the creativity of someone else. So in this case, the actual owners of the creation should be provided some protection by law, and that protection is covered by the copyright. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी बंदे ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई हो, सर्जन किया हो, कुछ लिखा हो, मान लीजिए एक अच्छी सी बुक लिखी है, एक अच्छी सी कविता लिखी है, क्रिएटिविटी दिखा दी, लेकिन यही क्रिएटिविटी कोई चुरा ले तो एक थ्रेट है, एक फियर है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही कॉपीराइट एक्ट बना है, आपकी जो रचना है उसको बचाने के लिए। वही बात पूरी इंट्रोडक्शन में यहाँ पे। The Copyright Act 1957 guarantees certain safeguards with regard to the rights of authors over the creations made by them. जो भी आपकी रचना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये कॉपीराइट एक्ट बनाया गया है। Whatever the work has been written by the author, it may be the book, it may be the article in some magazine, तो वो जितनी भी आपकी रचना है, क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है, जो भी रचनात्मक काम आपने किए हैं उसको सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बना है। No civilized society can ignore the essential requirement of encouraging creativity as it is the keystone of progress in society. क्रिएटिविटी से ही हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र का निर्माण है, एक समाज का निर्माण है। तो क्रिएटिविटी को जितना एनकरेज किया जाए उतना अच्छा है। एक की क्रिएटिविटी देखकर शायद दूसरा कुछ उससे सीखे कि नहीं देखो इसने कुछ अच्छा किया है तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। एक एनकरेजमेंट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। Additionally, the social and economic development of a society is majorly dependent on creativity. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिएटिविटी। इसके बेसिस पे ही, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल है, वैसे ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट पॉसिबल। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज कॉपीराइट अंडर द कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से कॉपीराइट का मीनिंग क्या है? The general meaning of the term copyright refers to the right to copy. Right to copy available only to the creator or author. जिसकी रचना है, जो रचयिता है, लेखक हो सकता है, तो उसी के पास अधिकार है, अपनी ही चीज के ऊपर उसको अधिकार रहेगा। He only has the right to copy. Nobody else can have a right to copy if he has registered his work. जो भी वर्क आपने किया है, अगर वो आपने रजिस्ट्रेशन उसका करवा लिया है एज पर कॉपीराइट एक्ट, तो उसको कॉपी करने का अधिकार सिर्फ आपका है। Nobody else can copy that work. Any other person who copies the original work of the author
or creator will be liable for copyright infringement as per the provision laid down under the act. अगर किसी ने आपके क्रिएटिविटी को चुराया, आपके क्रिएशन को चुराया, आपके ओरिजिनल वर्क को चुराया, तो आपके पास अधिकार है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, लीगल एक्शंस ले सकते हैं, क्योंकि आपके कॉपीराइट का जो राइट है उसको किसी ने वायलेट किया है। आपके ओरिजिनल वर्क को कॉपी करके आपका जो अधिकार है वो उसने वायलेट किया है, और उसके लिए वो लायबल बनता है जिसने भी ये काम किया है। He is the person who is liable to the original author, original owner, original creator of the work. Answer is continued. Definition पे चलते हैं। The exclusive and assignable legal right. The exclusive and assignable legal right given to the originator for a fixed period of years. दो शब्दों का उपयोग किया गया, एक्सक्लूसिव राइट यानी संपूर्ण अधिकार, यूं समझ लीजिए, और असाइनेबल लीगल राइट यानी चाहे तो किसी और को ये अपना अधिकार ट्रांसफर करना चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है। ये अधिकार किसे दिया जाएगा? जिसने रचना की होगी, जिसने कुछ क्रिएशन किया होगा, तो जो भी ओरिजिनेटर है, क्रिएटर है, उसको ये अधिकार मिलता है, एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं, वैसे ही असाइनेबल लीगल राइट्स भी मिलते हैं। लेकिन ये राइट्स कुछ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मिलेंगे। किस स्वरूप के राइट्स हो सकते हैं? टू प्रिंट, टू पब्लिश, टू परफॉर्म, टू फिल्म, टू रिकॉर्ड, लिटरेरी, आर्टिस्टिक और म्यूजिकल मटेरियल। इतनी चीजों की परमिशन क्रिएटर को, ओरिजिनेटर। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन यानी कि एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन क्या कह रहा है वो समझते हैं। द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ कॉपीराइट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट टू डू or authorize others to do certain act in relation to। अभी जैसे हमने ऊपर चर्चा की वैसी ही बात है। एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं, किसको राइट मिलते हैं? ऑथर को। वो खुद अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है, यानी कि अपनी चीज का यूज कर सकता है, खुद यूज कर सकता है, उसको फिर से कॉपी कर सकता है, उसकी प्रिंट निकाल सकता है, पब्लिश कर सकता है जहां पब्लिश करना हो, वगैरह वगैरह। यहाँ दूसरे को अधिकार दे सकते हैं, ऑथोराइज अदर्स टू डू सर्टेन एक्ट्स। किसी और को आप अथॉरिटी दे सकते हैं, हो सकता है उसको रेंट पे ही अधिकार दें, या उससे जो भी आपका अमाउंट बनता है, लीगल अमाउंट, वो आप रिकवर करके उसको ये अधिकार दें। तो किस स्वरूप का अधिकार आप दूसरे को दे सकते हैं? ऑथोराइज अदर्स टू डू सर्टेन वर्क इन रिलेशन टू लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, और इट मे बी म्यूजिकल वर्क, और इट मे बी आर्टिस्टिक वर्क, cinematograph, film, and the last one is sound recording। इतने कार्य के लिए आप अपने अधिकार दूसरे को दे सकते हैं। इनमें से कोई भी स्वरूप हो सकता है। ये डेफिनेशन का सेक्शन क्या है? एज पर सेक्शन 14 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। अब हम चर्चा करेंगे कि कॉपीराइट की कौन कौन सी ऐसी वर्क्स है जिसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द वर्क्स दैट आर प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट? आपने जो कार्य किया है, जो क्रिएटिविटी दिखाई है, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो कौन से वर्क के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगा? डेफिनेशन में, इंट्रोडक्शन में थोड़े वर्क हमने देख ही लिए हैं, वही है, नए नहीं है। सेक्शन 13 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 provides for the provisions related to the different types of works protected by copyright in India. The different types of work protected by copyright are as follows। सबसे पहला काम जो है वो है साहित्य का काम, लिटरेरी वर्क्स, लिखा पढ़ी वाली बातें, लिखने वाली बातें। The literary works includes the original creation of the literature, which can be in any form। लिटरेचर वर्क की बात हो रही है, आपने कुछ साहित्य लिखा है, वो साहित्य लिखने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट करते हैं, इसके प्रकार है, अलग अलग फॉर्म है। जैसे कि वर्क ऑफ फिक्शन, जैसे नॉवल लिखना, शॉर्ट स्टोरी लिखना, दैट इज द वर्क ऑफ फिक्शन।
टेक्निकल बुक्स और पेपर। टेक्निकल बुक्स यानी मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर यूज करना हो, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हैं, किसी ने उस टेक्निकली बेसिस पे बुक लिखी हो, कोई टेक्निकल पेपर लिखा हो और उसको पब्लिश करवाया हो शायद किसी मैगजीन में। बायोग्राफी हो सकती किसी व्यक्ति की, वो आपने लिखी हो, आपके जो भी आइडियल होंगे उसकी बायोग्राफी आप लिखने का सोच रहे हो। ड्रामेटिक्स, ड्रामा की बात आ रही है, ड्रामा भी लिखा जाता है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। थीसिस, पीएचडी रिसर्च वर्क से जुड़ा हुआ है, स्क्रिप्ट हो सकती है, कोई रिसर्च वर्क हो सकता है। कंपाइलेशन, जो भी काम किया गया है, मान लीजिए 5 जनों ने कुछ काम किया है, उसको आप कंपाइल कर दीजिए, एक में कवर कर लीजिए, उसको कंपाइलेशन कहते हैं। टेबल्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर डेटाबेस, इतनी चीजों का इसमें समावेश होता है। इन सब के लिए प्रोटेक्शन मिल सकता है, आप कॉपीराइट का उपयोग कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। आपकी खुद की रचना हो तो आप इस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं। कैन बी क्लेम्ड रिगार्डलेस ऑफ द स्टाइल, क्वालिटी और लिटरेरी मेरिट ऑफ द। आप इसमें से किस पैटर्न का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपकी कुछ लिखने की स्टाइल हो सकती है, क्वालिटी ऑफ, आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, और लिटरेरी मेरिट, कितने ही क्वालिटी वाली आपकी वर्क है उस पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लिखाई को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए तो जरूर करवाना चाहिए, प्रोटेक्शन। अगला है ड्रामेटिक वर्क, ड्रामा से जुड़ा हुआ। द ड्रामेटिक वर्क इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क का ही एक हिस्सा है, एक अंश है, एक भाग है, क्योंकि ड्रामा भी लिखा ही जाता है, नॉर्मली लिखा जाएगा फिर उसको परफॉर्म किया जाएगा, ऐसा। द ड्रामेटिक वर्क्स इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट ऑफ एक्टिंग अ प्ले। अगर प्ले लिखा गया है तो उसको उसके हिसाब से उस पे वो प्ले का एक्ट बनेगा। और अ पार्ट फॉर रेसिटेशन, पोयम जैसा हो सकता है, कविता जैसा हो सकता है, उसको भी आप एक्ट में दिखा सकते हैं। और कोरियोग्राफिंग वर्क, कोरियोग्राफी भी हो सकती है, जैसे डांस में होती है नॉर्मली, स्टेज पे जब डांस किया जाता है, मूवी में जब डांस किया जाता है। और डम शो एंटरटेनमेंट, पिक्चर्स क्यू अरेंजमेंट और एक्टिंग वर्क, इतनी चीजें कवर की जाती है। डम शो एंटरटेनमेंट क्या होता है? डम शो एंटरटेनमेंट मीन्स जहाँ कोई भी कैरेक्टर बोलेगा नहीं, चुप रहेगा, चुप करके एक्टिंग करेगा, ऐसा भी एंटरटेनमेंट होता है। हम नॉर्मली वो डम से रास खेलते हैं वैसा टाइप का। अब पिक्चर्स क्यू अरेंजमेंट, पिक्चर्स क्यू अरेंजमेंट यानी मान लीजिए आपने कहीं पे पेंटिंग करनी है वॉल पे, ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये भी एक चीज आ सकती है। और एक्टिंग वर्क बेस्ड ऑन द फिक्स्ड राइटिंग वर्क, अल्टीमेटली एक्टिंग का भी इसमें समावेश हो जाता है। म्यूजिकल वर्क्स क्या होता है ये देखते हैं। म्यूजिकल की बात आ गई तो जितने भी फेमस म्यूजिक वर्क्स है वो याद आ जाते हैं। पुरानी मूवीज में भी बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिसके म्यूजिक और सॉन्ग्स आज भी आपके माइंड में क्लिक होते हैं। 90s के कितना बढ़िया म्यूजिक वर्क होता था। आज के जमाने के म्यूजिक वर्क की मैं क्या बात करूं, समझ में ही नहीं आता है क्या चल रहा है। A musical work is a distinct work that is copyrightable in itself. The music works does not include any sound or lyrics. म्यूजिकल वर्क में सिर्फ म्यूजिक की बात होगी और कोई चीज का समावेश नहीं होगा। Though the works related to sound recordings are dependent on the musical works. फिर भी डिपेंड करता है, साउंड रिकॉर्डिंग का रिलेशन जो म्यूजिकल वर्क के साथ है वो डिपेंड करता है कितने अंश तक इम्पोर्टेंट है। बट द प्रोटेक्शन ऑफ म्यूजिकल वर्क्स, a separate application is required to be made for its registration. म्यूजिकल वर्क को प्रोटेक्ट करना है, किसी संगीतकार ने बहुत ही अच्छा सा संगीत बनाया हो और वो प्रोटेक्शन चाहता हो अपने काम का, तो वो जरूर करवाना चाहिए, रिस्क है नहीं तो।
The author of a sound recording is not required to take any permission from the author of a musical work. दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है, साउंड रिकॉर्डिंग अलग चीज हो गई, म्यूजिकल वर्क अलग हो गया, मिक्स नहीं होना चाहिए। दोनों के कंपाइलर अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए म्यूजिक बनाने वाला बंदा अलग हो और साउंड रिकॉर्डिंग करने वाला बंदा अलग हो, तो वहां पे जो जिस बंदे ने साउंड रिकॉर्डिंग की है उसने म्यूजिकल वर्क के लिए उसके ऑथर से परमिशन लेने की जरूरत है। For enjoying copyright protection for a musical work, it is not required that the musical work is written down. ये लिखा म्यूजिक वर्क है, लिखा नहीं जाता है, बजाया जाता है, प्ले किया। ठीक है? और साउंड रिकॉर्डिंग क्या है कि भाई साउंड रिकॉर्डिंग के लिए अगर दूसरा बंदा है तो दूसरे बंदे को म्यूजिक कंपोजर से परमिशन लेने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन वाला काम करेंगे। दोनों ने अपने फायदे के लिए सोचना है कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो दोनों की चीज प्रोटेक्टेड रहेगी। अगर दोनों अंदर अंदर लड़ पड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। के बाद फोर्थ पॉइंट है आर्टिस्टिक वर्क। यहाँ कला की बात होगी, कलात्मक कार्य की बात होगी। Under Section 2 of the Copyright Act 1957, the protection of copyright in artwork exists in an original artistic work. Original शब्द का उपयोग किया गया। Original artistic work comprising of sculptures, paintings, cartoons, graphics, lithography, etchings, drawings, plans, photography, diagrams, models of buildings, charts, buildings, maps, molds and casts for sculptures। इतनी सारी चीजें को प्रोटेक्शन। मूर्तियां हैं, मूर्तिकार होता है, मूर्तियां बनाता है। किसी ने पेंटिंग की और अच्छी सी, कोई कार्टून क्रिएट करता है, कार्टून के स्केचेस फ्रेम करता है, बहुत बढ़िया कार्टून कैरेक्टर फ्रेम करता है। किसी ने अपना कार्टून कैरेक्टर अगर फ्रेम किया और फेमस हो गया तो वो सोचेगा कि चलो मैं इसका रजिस्ट्रेशन करवा लूं और इसको और कोई इस कार्टून का जो मैंने कैरेक्टर का जो नाम दिया हो कोई इसका यूज ना करे। तो इस तरीके से आप अपने कार्य का प्रोटेक्शन कॉपीराइट एक्ट के अंदर करवा सकते हैं, कर सकते हैं। कोई अच्छी सी ग्राफिक्स आपने बनाई हो तो वो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका। वैसे ही लिथोग्राफ्स, स्केचिंग्स, ड्राइंग्स, प्लान्स, फोटोग्राफी कोई अच्छी सी आपने कवर की हो, तो ये सब चीजों का प्रोटेक्शन आपको मिलता है कॉपीराइट एक्ट के अंदर। इसके अंदर बात आती है आपके ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क की। खुद आपने अपनी क्रिएटिविटी एक पर्टिकुलर कार्य के अंदर दिखाई है तो वो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका कार्य कोई और चुरा ना ले। अगर आपने कोई यूनिक पीस बनाया होता है, ठीक है, जैसे ताजमहल, उसका भी रजिस्ट्रेशन किया ही होगा उसके रचयिता। एक एग्जाम्पल है, उसकी जो रचना जो उसकी रचना की गई है, उसकी जो क्रिएटिविटी के अंदर जो अंदर एनग्रेवमेंट किया गया है, एनग्रेविंग वर्क किया गया है, जो बारीकी वाला काम किया गया है, मोल्डिंग किया गया है, कास्टिंग किया गया है, जो भी बारीकी वाला काम किया गया है, मुश्किल काम के अंदर जो डिजाइन वगैरह है वो सब आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि सेम टू सेम डिजाइन कोई कॉपी ना करे। सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, मूवी की बात आ रही है, इसमें सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। कैसी लड़ाई होती है? भाई आपने मेरी स्टोरी चुरा ली, आपने मेरा गाना चुरा लिया। ये ज्यादातर प्रॉब्लम होता है फिल्म इंडस्ट्रीज की। अगर हम बात करें तो ऐसा कभी आपने कंट्रोवर्सी देखी होगी, सुनी होगी। As per the definition of the cinematograph films, every single recorded work with moving images or visuals will be considered as cinematograph. Every single recorded work, recording हो रहा है, साथ साथ में images और visuals आपको सामने दिख रही है। तो ये एग्जैक्टली इसका मीनिंग हो गया। सिनेमेटोग्राफ क्या है? A cinematograph film is a work of visual recording together with the sound recording। यानी यहाँ पे दो रिकॉर्डिंग,
विजुअल रिकॉर्डिंग हो रहा है एंड साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है, डायलॉग्स भी सुनाई देते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। विजुअल रिकॉर्डिंग टुगेदर विद द साउंड रिकॉर्डिंग accomplished by any process, whether digital or analogous, including the video films. डिजिटल भी हो सकता है, एनालॉगस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. It also includes visual recording in any medium and by any way of storing such visual record. रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, तो ये ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग को प्रोटेक्ट करने की बात है. इसको भी प्रोटेक्शन मिलता है एज पर कॉपीराइट एक्ट. इसके बाद आ रहा है साउंड रिकॉर्डिंग्स. Sound recording comprises of any work of sound recording irrespective of its storage medium. The songs which contain singer's voice with or without music, a recorded speech or audio or podcast is the example of sound recording. साउंड रिकॉर्डिंग में भी कौन कौन सी चीजों का समावेश होता है, तो किसी सिंगर की वॉइस हो सकती है, ठीक है. द सॉन्ग बीच कंटेन सिंगर्स वॉइस विथ और विदाउट म्यूजिक, हो सकता है सिर्फ गाना ही हो, सिर्फ उसकी आवाज हो, म्यूजिक ना हो. तो साउंड रिकॉर्डिंग में म्यूजिक भी आ रहा है और वॉइस भी आ रही है, किसी की स्पीच हो सकती है, वो भी रिकॉर्ड की जा सकती है. पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट यानी आपने कुछ ऑडियो क्लिप बना दी अपनी खुद की वॉइस की और आप रोटेट कर रहे हैं, जैसे कि रोटेट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसी जगह पे अगर आप इसको अपलोड कर दें, फॉरवर्ड कर दें, वो पॉडकास्ट वाली बात है. आप इसका भी, अगर आपकी स्पीच में दम है, आपकी आवाज में दम है, तो आप उसका भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. कॉपीराइट एक्ट के अंदर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये मेरे स्टेटमेंट्स है, ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये मेरा सॉन्ग है, मैंने अपनी आवाज में इसको रिकॉर्ड किया है, कोई चुरा ना ले, तो आप इसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके काम में दम है. In case the sound recording also contains music, so the permission from the author of musical work is required to be obtained for the copyright protection of the sound recording. अगर दो का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है, आप अपना, मान लीजिए आप सिंगर हैं और अपने ही वॉइस में एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो जो म्यूजिक कंपोज किया है जिस म्यूजिशियन ने, तो उसकी परमिशन भी वहाँ इंपॉर्टेंट बनता है. परमिशन लेके आप अपने वर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अल्टीमेटली दोनों को प्रोटेक्शन मिलता है.